Hello, Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all will be fine, okay and good. Welcome you all to our online classes. Today we are going to revise our old lectures, our previous lectures. As we have started from the word electronic, I have told you that for understanding the electronic, we must have a deep knowledge about the electrons, and electrons can be understood from its atomic model, from the atom, and atom is always described from its atomic model. You may see from this picture that atom consists of three fundamental particles: electron, proton and neutron. They are fundamental particles. However, atom may have so many other particles like photon, positron and so many other particles, but fundamental or basic particles are three: electron, proton and neutron. Atom is divided into two main parts. First one is outer part. In outer part, one fundamental particle called electron continuously revolves surrounding the atoms. Electron always revolves in orbital rings or shells or energy levels. They are labeled by K, L, M, N and so many others. Electron always revolves, they are never at rest. The nucleus part consists of positive sign or positive charge. Why it contains positive charge? Because proton lives in a nucleus. However, neutron also lives there, but neutron is a neutral and proton contain positive charge. Therefore, nucleus contain a positive charge and electron contain a negative charge. Nucleus of the atom is too much heavy. Nucleus of an atom is too much heavy. Why it is too much heavy? Because the atomic mass, which is represented by A, atomic mass is a mass of proton and neutron. Atomic mass is totally considered the mass of proton and neutron. The mass of electron is neglected, is negligible. Why it is negligible? Because electron is 1836 times lighter as compared to the proton. It means in a charge balance, if you place one proton, you have to keep 1836 electron. Therefore, charge balance will be balanced. Therefore, we neglect the mass of electron. We say that the mass of atom is totally concerned in its nucleus. The mass of atomic mass is the mass of nucleus. The mass of electron is neglected. Okay, we are moving towards the further fundamental particles. First one is current. Current is a flow of charges. This definition is a wrong definition. That current is not a flow of charges. Current is a flow of charges through a cross sectional area. Current जो है वो सिर्फ फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं है. चार्जेस का तो कहाँ से भी फ्लो हो सकता है, लेकिन आपने अपनी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बनानी है जहाँ से आपने चेक करना है कि कहाँ चार्जेस जा रही हैं. तो उस इंटरेस्टिंग पॉइंट में से जितनी भी चार्जेस मूव हो रही हैं वो आपका कहलाएगा करंट. Second one is what is voltage? Energy required to move charge from one potential level to next potential level, or one voltage level to the next voltage level. Keep in mind that I have mentioned in the slide one potential level to the next. I didn't mention that from higher level to lower or lower to higher. Yes, if energy is required to move a charge from lower to higher, voltage will be positive. If from higher to lower, the voltage will be negative. Third one is resistance. Word resistance is taken from the word resist. Resist का मतलब होता है किसी भी चीज़ में रुकावट डालना. Yes, resistance is a resist in the path of the current. ये जो होता है करंट के फ्लो में जो रुकावट डाले, ऐसी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं रेजिस्टेंस. ये आप एक कॉमन सा एग्जांपल लेके उससे भी समझ सकते हैं ये सारी चीज़ें. लेट सपोज हम क्या करते हैं, दो टैंक उठाते हैं और दोनों टैंक को वाटर से फिल कर देते हैं. वी कीप द लेवल ऑफ वन एट हाफ एंड अदर एट फुल. हम क्या करते हैं, एक टैंक का जो लेवल है वो हाफ पे रख देते हैं, सेकंड को फुल पे रख लेते हैं. वी कनेक्ट देम बाय पाइप. हम उन दोनों को पाइप के ज़रिए कनेक्ट कर देते हैं. व्हाट विल हैपन, वाटर विल फ्लो फ्रॉम वन टैंक हुज लेवल इज़ एट हायर पोजिशन. तो पानी कहाँ से फ़्लो करेगा, पानी उस टैंक में से फ़्लो करेगा जिसका लेवल क्या था, हायर लेवल पे था. उससे फ़्लो करेगा, किसकी तरफ आएगा, उस टैंक की तरफ आएगा जिसका लेवल क्या था, बिल्कुल लो था. और कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, दिस विल कंटिन्यू
until and unless both becomes balance। ये तब तक ही चलता रहेगा जब तक दोनों के लेवल इक्वल नहीं हो जाते। अब इसी चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक के टर्म में रिलेट करने जा रहे हैं। स्टोर्ड वाटर इज़ बेसिकली द स्टोर्ड चार्जेस। स्टोर्ड वाटर क्या है? स्टोर्ड चार्जेस हैं। एंड द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वन टैंक टू द अदर इज़ बेसिकली द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ वाटर, हमने कहा स्टोर्ड वाटर इज़ स्टोर्ड चार्जेस। जब वो वाटर फ्लो कर रहा है मीन्स चार्जेस क्या कर रही हैं? फ्लो कर रही हैं। एंड फ्लो ऑफ चार्जेस इज़ करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, लेवल डिफरेंस, देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन बोथ द टैंक्स। सो जब भी हमारे पास क्या होगा? लेवल डिफरेंस होगा, जिसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इन अदर वर्ड्स वो हमारे पास क्या है? वोल्टेज। ये बात याद रखिएगा, जब तक हमारे पास क्या होगा? वोल्टेज का डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, जब तक लेवल का डिफरेंस नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं कर सकता। इसको आप ऐसे समझिए, दोनों टैंक हैं, दोनों को आप क्या कर देते हैं? सेम सतह पे, उनके सेम बैलेंस पे हैं, यानी दोनों को जो वाटर का लेवल है वो इक्वल है। दोनों को पाइप से कनेक्ट कर दें। अब पानी कहीं से पर भी कहीं पर फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं फ्लो करेगा? क्योंकि उनके बीच में कोई लेवल का डिफरेंस नहीं है। तो जब तक टैंक की एग्जांपल में वाटर के लेवल में कोई डिफरेंस नहीं है तब तक कोई पानी फ्लो नहीं कर रहा। तो सेम ही इलेक्ट्रॉनिक के टर्म में जब तक वोल्टेज नहीं होगा, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं, मैंने 2 स्टेटमेंट क्लास में बताई थी कि वोल्टेज कैन एग्जिस्ट विदाउट करंट बट करंट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट वोल्टेज। करंट कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता वोल्टेज के बगैर। वोल्टेज का होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज़ कंडक्टेंस। तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होता है? रुकावट होता है फ्लो ऑफ करंट में। कंडक्टेंस उसके बिल्कुल क्या है? रेसिप्रोकल है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है? उसके पाथ में रुकावट डालता है, फ्लो में रुकावट डाल देता है। तो ये क्या करेगा? फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज नहीं करेगा बल्कि उसको क्या करेगा? सपोर्ट करेगा, उसको फ्लो करवाने में मदद करवाएगा। तो दिस क्वांटिटी इज़ नोन एज कंडक्टेंस एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय G। कंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय G where resistance is represented by R. Unit of resistance is ohm where the unit of conductance are Siemens, mho or reciprocal of ohm. There are 3 units of conductance. They are Siemens, mho and reciprocal of ohm. Okay, we're going to the next topic, that is conductor, insulator and semiconductor. Word conductor is taken from conduct. Conduct means which pass the electricity. Conductor are such materials which conduct the electricity, which pass the electricity. Metals are good conductor. Water is a good conductor. Our body is a good conductor. हमें जो करंट लगता है उसकी वजह यही है कि हमारी बॉडी क्या है? कंडक्टर है। कंडक्टर क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट करता है कि वो उसमें से गुजर जाए, इसीलिए हमारी बॉडी कंडक्टर है। इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है तो पूरी बॉडी में हमारे में इलेक्ट्रिसिटी फैल जाती है। We are coming to the next point. Insulator. Insulator is such material which does not conduct the electricity under the normal condition. Okay? इंसुलेटर एक ऐसे मटेरियल हैं जिनमें से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ईजिली नहीं गुजर रही होती। और आप इसका एग्जांपल ऐसे लें, आप एक वुड का पीस लें, उसके एक साइड पे आप किसी तरीके से भी इलेक्ट्रिक शॉक लगाएं, नेक्स्ट एंड पे आपको कोई करंट नहीं मिलेगा। उसकी वजह यही है बिकॉज दिस मटेरियल, दिस पार्ट ऑफ अ वुड इज़ इंसुलेटर। इंसुलेटर डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो हम जो शॉक दे रहे हैं जिसमें इतनी ज़्यादा चार्जेस हैं, अदर वर्ड इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, वो कहाँ पर जा रहे हैं? इंसुलेटर स्टोर दीज चार्जेस इनसाइड इट एंड ड्यू टू दिस स्टोरिंग प्रॉपर्टी इंसुलेटर इज़ आल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक। और इसी स्टोरिंग प्रॉपर्टी की वजह से कि वो चार्ज को स्टोर कर रहा है, आगे नहीं भेज रहा, दूसरे एंड तक नहीं पहुंचा रहा है, इसी वजह से हम इस इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। और इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस या ग्रुप 8 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इंसुलेटर हैं। वो केमिकल रिएक्शन में अपना पार्ट प्लेस नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसकी वजह यह है कि उनके जो शेल्स होते हैं वो कंप्लीट्स होते हैं, वो स्टेबल होते हैं और उनको कोई ज़रूरत नहीं हो कि वो केमिकल रिएक्शन में अपना पार्ट प्लेस करें। थर्ड वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इन द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इज सेमी कंडक्टर। Word semi means half. It means it's half of the property resembles with conductor and half of the property resembles with insulator. ये क्या है? इंटरमीडिएट स्टेट है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो है वो कंडक्टर के साथ रिजेंबल करती हैं, कुछ प्रॉपर्टी इसकी इंसुलेटर के साथ रिजेंबल करती हैं। जिस तरह मैंने आपको कंडक्टर का एग्जांपल वाटर दिया था एंड इंसुलेटर का एग्जांपल मैंने आपको वुड दिया था, इसी तरह ही अगर उस वुड में थोड़ा सा पानी डाला जाए, इन अदर वर्ड्स हम एक गीली लकड़ी उठाएं
तो लकड़ी जो है वो इंसुलेटर है और वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर। तो जो हमारे पास एक गीली लकड़ी है, इट इज़ बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेमी कंडक्टर। पानी की वजह से थोड़ा सा करंट उसमें से पास होगा और लकड़ी उसको रोकेगी, तो पूरा का पूरा करंट तो पास नहीं होगा, लेकिन पार्शली उसमें से कुछ करंट फ्लो कर जाएगा। ओके, ग्रुप 4 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेमी कंडक्टर हैं। क्यों सेमी कंडक्टर हैं? क्योंकि ग्रुप 4, keep in mind that group number indicates the number of electron in valence shell. Valence shell means the last shell, outermost shell. Group 4 means its valence in a valence shell of a semiconductor will always have 4 electrons. तो उसके पास 50-50% चांस होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करे या गेन करे। 50-50% चांसेस की वजह से वो ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं? सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। ओके, दी 3 टर्म्स कैन आल्सो अंडरस्टैंड फ्रॉम एनर्जी बैंड गैप थ्योरी। ओके, वैलेंस, in case of a conductor there is no difference between conduction band and valence band। हमारे पास कंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई गैप नहीं होता। इन अदर वर्ड्स, जो हमारे पास वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में गैप होता है, जो डिफरेंस होता है, उसे हम कहते हैं बैंड गैप। बैंड गैप इज़ एक्चुअली अ डिफरेंस बिटवीन अ वैलेंस बैंड एंड अ कंडक्शन बैंड। तो हमारे पास मेटल में क्या होता है? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप्ड होते हैं एक दूसरे के ऊपर। जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में आ रहे होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ रहे होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर क्यों होते हैं? इसीलिए गुड कंडक्टर होते हैं क्योंकि सारे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, दे से दैट यस वी आर रेडी फॉर द फ्लो ऑफ करंट। जब तक कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे तो करंट होगा, जब तक कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उसमें से कोई करंट भी फ्लो नहीं करेगा। सेमीकंडक्टर के 2 टाइप्स के होते हैं। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर आर सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड कार्बन। We have 3 elemental semiconductor. They are silicon, germanium and carbon. And most of the electronic devices are made from silicon. Reason is that silicon is the second most abundant in our universe. हमारे पास जो सिलिकॉन है वो दूसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जबकि पहले नंबर पे हमारे पास है ऑक्सीजन। First most abundant element on our earth is oxygen. तो हमारे पास इसी वजह से जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक की जितनी भी चीज़ें बनी होती हैं आपके, वो सारी की सारी सिलिकॉन की बनी हुई होती हैं। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: बाइनरी, ट्राइनरी एंड क्वार्टनरी। इफ़ अ कंपाउंड सेमीकंडक्टर आर मेड फ्रॉम 2 एलिमेंट्स, that compound semiconductor will be termed as a binary, and if it is made from 3 elements it is trinary, and if it is made from quaternary, such a compound semiconductor is called as quaternary semiconductor. Okay, now we're going to the last topic of this chapter, that is short circuit and open circuit. What is short circuit? A short circuit is a circuit whose resistance is zero and maximum current can flow. शॉर्ट सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो होती है, एंड ओम्स लॉ सेज दैट रेजिस्टेंस एंड करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जाहिर सी बात है, रेजिस्टेंस रुकावट है करंट के फ्लो में, तो रेजिस्टेंस और करंट क्या हो, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। अगर हमारे पास रेजिस्टेंस उसकी ज़ीरो है तो ज़ीरो का रेसिप्रोकल 1/0 इन्फिनिटी है। बट रिमेंबर, नो इन्फिनाइट करंट कैन एग्जिस्ट। हमारे पास इन्फिनाइट करंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इन्फिनिटी के बजाय वी यूज़ द वर्ड मैक्सिमम। मैक्सिमम करंट कैन फ्लो, यानी जितना सोर्स करंट प्रोड्यूस कर रहा होगा सारा का सारा उसी शॉर्ट सर्किट में से गुजर रहा होगा, बाकी किसी को भी नहीं देगा। लेट्स सपोज इफ 3 resistors are connected in parallel along with a short circuit or a short wire, no current will flow from any resistor. अगर हमारे पास 3 रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड हैं, उनके साथ एक शॉर्ट सर्किट, इन अदर वर्ड्स में कह दूँ कनेक्टिंग वायर जो हम लैब्स में यूज़ करते थे, वो उसके साथ कनेक्ट कर दें, तो अब क्या होगा, उसके साथ वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करने के बाद जब भी करंट फ्लो होगा, करंट विल ऑलवेज फॉलो द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। करंट हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ को चेक करता है और उसी में से फ्लो होता है।
तो अब देखेगा कि हर एक रजिस्टर जो है वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो वो वहाँ करंट वहाँ से नहीं गुजरेगा. करंट विल चेक दैट इफ़ देयर एग्जिस्ट लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ देन इट विल फ्लो फ्रॉम देयर. तो अब रजिस्टर अब क्या करेगा, करंट चेक करेगा कि इन तीनों रजिस्टर के बजाय अब कोई और इसके पास पाथ है तो वो वहाँ पर चला जाए. तो अब क्या होगा कि अब उन तीनों रजिस्टर के बजाय सारा का सारा करंट जो सोर्स में से आ रहा है वो उस शॉर्ट वायर में से गुजर के चला जाएगा और कोई भी करंट किसी रजिस्टर में से नहीं गुजरेगा. ओपन सर्किट. Open circuit is a circuit whose resistance is infinite and no current can flow from the circuit. ओपन सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसकी रेजिस्टेंस तो इन्फिनाइट होती है लेकिन उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होता. जाहिर सी बात है, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस मीन्स कि उसमें से इन्फिनाइट रुकावट है तो कोई करंट वहाँ से फ्लो नहीं करेगा. इन अ सीरीज सर्किट इफ़ वन रजिस्टर बिकम ओपन नो करंट कैन फ्लो फ्रॉम होल सर्किट. अगर सीरीज़ में 3 या 4 रजिस्टर कनेक्टेड हैं और उसमें से एक रजिस्टर ओपन हो जाता है या एक रजिस्टर ओपन सर्किट हो जाता है तो पूरे में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. बिकॉज इन अ सीरीज़ द करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम same current will always flow from each resistor. There is a single path. सीरीज़ में हमारे पास एक ही पाथ होता है, सारा का सारा करंट सब में से सेम गुजर रहा होता है. तो इसीलिए करंट को हमेशा फ्लो होने के लिए एक कंप्लीट पाथ चाहिए. जब एक रजिस्टर ओपन हो जाएगा, पाथ कंप्लीट नहीं होगा, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस ऑफर होगी तो पूरी सर्किटरी में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा. इसीलिए हमारी जितनी भी होम अप्लाइंसेस हैं सारी की सारी पैरेलल में कनेक्टेड हैं. अगर सीरीज़ में होती तो हमारे एक छोटे से ट्यूबलाइट या बल्ब की वजह जलने की वजह से सारी की सारी चीज़ें ना चलती. On and off state of switches are related to an open circuit and short circuit. ऑन और ऑफ स्टेट, जाहिर सी बात है स्विच है उसकी 2 ही स्टेट होती हैं, या ऑन होता है या ऑफ. तो ऑन और ऑफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है या शॉर्ट सर्किट की ओपन सर्किट को. अगर ऑन है इसका मतलब कि सारी की सारी डिवाइसें चल रही हैं, इसका मतलब कि सोर्स जो करंट भेज रहा है आगे सारा डिवाइसेस तक पहुंच रहा है. इट मींस कि ऑन स्टेट में हमारे पास जो सर्किट बन जाता है वो शॉर्ट सर्किट बन जाता है. क्यों शॉर्ट सर्किट बन जाता है? क्योंकि शॉर्ट सर्किट ही मैक्सिमम करंट को पहुँचा रहा होता है और वो कोई इन्फॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होने देता. जब हमारे पास स्विच की ऑफ स्टेट होती है तो ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट कर रही होती है सर्किट के ओपन होने का, यानी ऑफ में हमारे पास कोई डिवाइस नहीं चल रही होती. और सेम जब हमारे पास सर्किट ओपन हो जाता है तो वो इन्फिनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है. इन्फिनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है तो किसी में से कोई करंट फ्लो नहीं होता. जब किसी में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा देन नो डिवाइस कैन ऑपरेट. Now we are moving to the chapter number 2. The first topic of chapter number 2 is color coding. Color coding is a name of technique which is used to calculate the resistance of a resistor. ये एक टेक्निक का नाम है जिसमें हम क्या करते हैं, एक रजिस्टर के रेजिस्टेंस मालूम करते हैं. Keep in mind resistor is a component and resistance is a property of that component. Okay. You will observe that a color-coded resistor is always wrapped by strips on which these colors always appears. You may remember these colors by using this word. B.B. Roy, great by, very good woman. First B indicates the black color, second brown, R stands for red, O stands for orange, Y for yellow, G for green, good boy, B for blue, very good, V stands for violet, G stands for gray and W stands for white. There are totally 10 colors and their numerical value is always start from 0 up to 9. In our lab we always have 4-band color coded resistors. However, we will also run a 5-band color coded resistor. In a 4-banded color coded resistor, observe the first 2 colors. Let's suppose we are going to resistor number A. It has red color. Check the numerical value of a red. The numerical value of a red is 2. Write 2 as it is. Then green, numerical value of green is 5. तो जो 2 फर्स्ट कलर अपीयर हो रहे होंगे आपने वो 2 कलर ऐसे ही रख देने हैं. द थर्ड स्ट्रिप इज़ कॉल्ड मल्टीप्लायर.
तीसरी जो स्ट्रिप या तीसरा जो बैंड होता है वो मल्टीप्लायर कहलाता है, और जो कलर आ रहा होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करके आपने उतने ज़ीरोज़ लगाने होते हैं। द फोर्थ स्ट्रिप इज़ कॉल्ड टॉलरेंस। फोर्थ स्ट्रिप इज़ कॉल्ड टॉलरेंस। टॉलरेंस मीन्स हाउ मच द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फ्लक्चुएट फ्रॉम इट्स एक्चुअल वैल्यू। ये कितना अपनी एक्चुअल वैल्यू से फ्लक्चुएट कर रही होती है वो अपने चेक करना होता है। और फोर्थ स्ट्रिप में हमेशा आपके पास क्या आ रहा होता है, सिल्वर आ रहा होता है या गोल्ड आ रहा होता है। ओके, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट 2 डिजिट की वैल्यू एज इट इज़ उठा के रख देनी है, थर्ड पे उतने ज़ीरोज़ लगाने हैं, उस ज़ीरोज़ लगाने के बाद प्लस माइनस करना है जो आप उसकी टॉलरेंस आ रही हो। फिर आपने क्या करना है, इसका 5%, लेट सपोज गोल्ड है तो 5% एंड सिल्वर है तो 10 प्लस माइनस 10%, 5% और 10% निकाल के एक्चुअल वैल्यू में फर्स्ट ऐड करेंगे, सेकंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल सी और रेंज। वी आर गोइंग टू register B. Register B contain a special property. Register B contain a special property. First one is red. We write the numerical value of red, that is 2. Second one is green. We write the numerical value of green, that is 5. Black. You will see from this table that the numerical value of black. जब भी आपके पास मल्टीप्लायर में ब्लैक आ जाए, ब्लैक का मतलब, मल्टीप्लायर का यही मतलब होता है जो कलर आए उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जितने ज़ीरोज़ लगाने हैं। वहाँ पर रेड था, रेड की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ 2 थी तो हमने 2 ज़ीरो लगाए थे, 2 नहीं लिखा था। यहाँ पर ब्लैक है, ब्लैक की न्यूमेरिकल वैल्यू 0 है, 0 का मतलब कि 0 ज़ीरोज़ लगाने हैं, 0 ज़ीरोज़ लगाने का मतलब हम कोई ज़ीरो नहीं लगाएंगे। रेड की वैल्यू एज इट इज़ प्लेस की, ग्रीन की एज इट इज़ प्लेस की, कोई ज़ीरो नहीं लगाया बिकॉज मल्टीप्लायर इज़ अ ब्लैक। अगेन देयर इज़ अ गोल्ड इन टॉलरेंस विल बी प्लस माइनस 5%। तो आपने क्या करना होगा, 25 का पहले 5% निकालना होगा। कैसे 5% निकालेंगे, 25 × 5 डिवाइडेड बाई 100, जो वैल्यू आए उसको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 25 में ऐड करना है, देन 25 में से उसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, यू विल फाइंड अ रेंज। ओके, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट सिल्वर एंड गोल्ड नेवर कम्स इन फर्स्ट 2 स्ट्रिप। सिल्वर गोल्ड कभी भी फर्स्ट 2 स्ट्रिप में नहीं आ सकते। यस, ये मल्टीप्लायर की जगह आ सकते हैं। सिल्वर और गोल्ड मल्टीप्लायर यानी थर्ड स्ट्रिप में आ सकते हैं। अगर थर्ड स्ट्रिप में सिल्वर या मल्टीप्लायर आ जाए, मल्टीप्लायर की जगह सिल्वर या गोल्ड आ जाए तो क्या करना चाहिए, देन आपको ये करना है कि फ़र्स्ट 2 डिजिट को एज इट इज़ प्लेस करना है, और गोल्ड की जगह, अगर आपके पास मल्टीप्लायर की जगह गोल्ड आ गया है तो फर्स्ट 2 डिजिट को आपने मल्टीप्लाई करना है 0.1 के साथ। सी द फिगर नंबर सी, you will see that first strip is red, numerical value is red, numerical value of a red is 2. Second one is green, numerical value of a green is 5, 2, 5, and third is gold. Multiplier is gold. When multiplier is gold, we do not add zeros to first 2 digits, but we will always multiply either by 0.1 or 0.01. It depends upon that multiplier is gold or silver. If gold multiply by 0.1, when we multiply 25 by 0.1, we will get 2.5. You may see from here that it is 2.5. Again, fourth is silver. Tolerance of silver is plus minus 10%. You have to find the 10% or 2.5. How you will find? Multiply 2.5 by 10 divided by 100. You will find a value. Then add this value to 2.5. You will find the upper range, then subtract that value from 2.5. Okay, now we're going to 5-band color coded resistor. It contains 5 strips instead of 4 strips. और जिस तरह हमारे पास 4-बैंड कलर कोडेड रजिस्टर में जस्ट टॉलरेंस जो थी सिल्वर या गोल्ड आ रही थी, इसमें टॉलरेंस में यानी 5th स्ट्रिप में ये सारे कलर आ सकते हैं। अगर ब्राउन, रेड, ग्रीन, ब्लू या वायलेट। अगर ब्राउन है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस माइनस 0.1 है, अगर रेड है तो प्लस माइनस 2 है, अगर ग्रीन है तो प्लस माइनस 0.5 है, अगर ब्लू है तो प्लस माइनस 0.25, अगर वायलेट है तो प्लस माइनस 0.5. हाउ यू विल फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रजिस्टर? ओके, see first 3 colors. The first is orange, write the numerical value of orange. Second is blue, write the numerical value of blue. Third one is green,
राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ग्रीन, यानी वहाँ पर हम क्या करते थे, फर्स्ट 2 डिजिट की वैल्यू एज इट इज़ लिख लेते थे, थर्ड के में जितने मल्टीप्लायर की वैल्यू होती थी उतने ज़ीरोज़ प्लेस करते थे। यहाँ पर क्या करेंगे, 3 पहले जो कलर हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू एज इट इज़ प्लेस करेंगे, फोर्थ वन इज़ मल्टीप्लायर, वहाँ पे थर्ड वन इज़ मल्टीप्लायर था, यहाँ पे फोर्थ वन इज़ मल्टीप्लायर। तो जितने मल्टीप्लायर की वैल्यू आ रही है उतने ज़ीरोज़ लगाने हैं। इस केस में ब्लैक है, ब्लैक की न्यूमेरिकल वैल्यू 0 है, 0 का मतलब कि 0 ज़ीरोज़ लगाएं, 0 ज़ीरोज़ का मतलब कि नो ज़ीरो लगाएं। फिफ्थ वन इज़ ग्रीन, यू मे चेक द वैल्यू ऑफ ग्रीन फ्रॉम दिस टेबल, द टॉलरेंस ऑफ ग्रीन इज़ ±0.5%। तो आपने क्या किया, फर्स्ट 3 डिजिट एज इट इज़ लगाएं, जितना आपके पास मल्टीप्लायर था उतने ज़ीरोज़ लगाए। इस केस में आप कोई ज़ीरो नहीं लगाएंगे और फिर मल्टीप्लाई किया ±0.5 के साथ, उस वैल्यू का 0.5% निकालेंगे, वो उस वैल्यू में एक मरतबा ऐड करेंगे एंड देन सबट्रैक्ट करेंगे। Now we are going to next topic, that is chip resistor. Chip resistor is also known as surface mount resistor. It's the next name of chip resistor. It is mostly used in computers. They are always in a black colors, you may see, and its body is white or off-white. It contains a C-shaped electrodes. The main thing from the chip resistor is to read the resistance value from its body. You may see from its body that it contains 3 digits, X, X and X. It represents that it contains 3 digits. इसकी बॉडी पे 3 डिजिट होते हैं या 4 डिजिट के भी होते हैं। If it contains 3 digits, check first 2 digits, then write as it is. Third one is multiplier. Let's suppose अगर इसकी बॉडी पे लिखा होता 1 1 1, तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट 2 डिजिट को एज इट इज़ प्लेस कर लेते हैं 1 1। जो थर्ड वन होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है, इसमें टॉलरेंस का कोई सीन नहीं। थर्ड वन इज़ मल्टीप्लायर, यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब 1 ज़ीरोज़ लगाएं। अगर इसकी बॉडी पे होता 1 1 0, तो आप फर्स्ट 2 डिजिट को एज इट इज़ प्लेस करते हैं, 1 1 एज इट इज़ लिखते हैं, फिर क्या था 0 0 का मतलब 0 0 लगाएं, मतलब कोई ज़ीरो नहीं लगाएं, यानी ये 11 ओहम है। अगर 11 ओहम लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1 1 0 के साथ। अगर उसकी बॉडी पे 4 डिजिट हैं तो 3 डिजिट एज इट इज़ प्लेस करेंगे, फोर्थ वन उसका क्या होगा, मल्टीप्लायर। लेट सपोज अगर है 1 1 1 2, तो आप क्या लिखेंगे, पहले 3 1 एज इट इज़ लिखेंगे, देन ऐड 2 ज़ीरोज़। ओके, sometimes it contains some letters like R, K and M. If it contain R, where it contain R, K and M, place a decimal dot there. Let's suppose this chip resistor contain 4R2. It means write 4 as it is, place point instead of R. We have 4R2, write 4 as it is, decimal point in the place of R, 4R2 4.2. It means its resistance will be 4.2 ohm. If it contains 4K2, it means its value will be 4. Instead of K, we will place a decimal dot, 0.2. 2 will be as it is, but its unit will not be the ohm, its unit will be kilo ohm. अब इसकी अगर K आ गया तो इसका यूनिट किलो ओम होगा, अगर M आ गया तो कैपिटल तो इसका यूनिट होगा मेगा ओम। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि एक जगह पर कभी भी 2 लेटर नहीं आ सकते, ऐसा नहीं हो सकता R2R। R2R मीन्स 0.2.0, तो ये मैथमेटिकली इनवैलिड है। डेसिमल पॉइंट सिर्फ एक ही जगह पर आता है, कहीं पर भी 2 जगह पर नहीं आता। 0 ohm resistor contain a black band on a center. 0 ohm resistor contains only a single strip on its body at a center, and it is used in insertion machine. Whenever robot works over certain project, then they don't use the sharp wires for connection, they use 0 ohm resistor for the connection. Thermistor. Thermistor is a temperature sensor. First of all, we will focus on a word sensor. A sensor has two words. First of all, it sense something and do something against the sensing. सेंसर एक ऐसी चीज़ होती है जो क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी चीज़ को सेंस करता है, सेकेंडली उसी सेंसिंग के कोरस्पेंडिंग कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, तभी पता चल रहा होता है कि वाकई इसने कुछ चीज़ सेंस की हुई है।
Thermistor is actually a sensor. Which kind of sensor? We have a variety of sensor like temperature sensor, pressure sensor, humidity sensor, and so many other. Thermistor is basically a temperature sensor. It senses the temperature, and which action it performs? It varies its resistance. First of all, it senses temperature, and against sensing, it performs action that it varies its resistance. You may say that thermistor is a temperature sensor, or you may say that it's like a variable resistor which changes its resistance continuously by sensing the temperature. If the resistance increases with the increase in temperature, if you want to increase, if the temperature is continuously go on increasing and increasing, then if its temperature is increasing, such thermistor is known as PTC, positive temperature coefficient. अगर एक थर्मिस्टर ऐसा है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, तो उस थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती जा रही है, ऐसा थर्मिस्टर पीटीसी कहलाता है, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. If the resistance increase with the decrease in temperature, or if a resistance decrease with the increase in temperature, there is an inverse relation between the resistance and temperature, then such thermistor is known as NTC thermistor. I hope this will it's very clear and easy. प्रिफर्ड रेजिस्टेंस वैल्यू, मैंने ऑलरेडी क्लास में भी डिस्कस किया था कि प्रिफर्ड रेजिस्टेंस वैल्यू, जब रजिस्टर इन्वेंट हुआ था तो उनकी सो मैनी वैल्यूज़ थी. कंपनी के पास ये पॉसिबल बात नहीं थी कि वो हर वैल्यूज़ का रजिस्टर बनाए, इसीलिए उन्होंने अपने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए थे. उन्होंने कुछ वैल्यूज़ प्रिफर की थी कि इन वैल्यूज़ का हमारे पास रजिस्टर है. इसके अलावा अगर आपको कोई रजिस्टर चाहिए तो वो आप अपना जो है स्पेशल ऑर्डर पे बनवा सकते हैं. उन्होंने जो वैल्यू प्रेफर की थी 10, 12, 15, 18 एंड सो मेनी अदर्स, और कुछ उनके मल्टीपल्स लाइक हम जैसे हमारे पास 10 ओम है तो उन्होंने 10 की बजाय 100 ओम का भी बनाया था, 1K का भी बनाया था, एंड सो मेनी अदर्स. व्हाट इज द शेल्फ लाइफ ऑफ कंपोनेंट अंडर विच देयर प्रॉपर्टीज रिमेन सेम. एक ऐसा कंपोनेंट जिसका ऐसा पीरियड हो जिसमें वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ को सेम रखे, तो वो उसका पीरियड कहलाता है शेल्फ लाइफ. Last topic of this chapter is a decade resistance box. This box actually consists of a wide range of temperature. इसमें हमारे पास क्या होते हैं, टोटल 6 बटन्स होते हैं. 1 is R/1, R/10, R/100, R/1K, R/10K, R/100K. तो यहाँ पर जो बटन है बेसिकली ये बता रहा होता है रेजिस्टेंस को, कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी. इसमें वॉशिंग मशीन की तरह 6 बटन लगे होते हैं जो रोटेट होते हैं, उनके साथ पोजीशन भी मेंशन की होती है, और हर एक बटन की जो पोजीशन होती है वो 0 से 9 तक सेट होती है. इफ़ R/1 बटन इज़ एट पोजीशन 0, इट हैज़ 0 ओम. इफ़ इट इज़ एट पोजीशन 1, इट हैज़ 1 ओम. इफ़ इट इज़ एट पोजीशन नंबर 3, इट हैज़ 3 ओम. सेम एट R/10, इफ़ इट इज़ एट पोजीशन 3, इट हैज़ 30 ओम. R/1 का मतलब कि पोजीशन को आप मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो आपको उसके बटन की रेजिस्टेंस मिल जाएगी. अगर आपके पास R/1 क्या है, पोजीशन 3 पे है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, आपके पास उसकी रेजिस्टेंस मिल जाएगी. R का मतलब ये होता है कि पोजीशन ऑफ दैट बटन. तो इस तरह आप हर एक बटन की पोजीशन जो है देख के उसकी रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. सेम अगर आपके पास R/100K क्या है, पोजीशन नंबर 8 पे है, तो R का मतलब है पोजीशन ऑफ बटन, दैट इज़ 8 मल्टीप्लाई बाय 100K, तो आपके पास उस बटन की वैल्यू आ जाएगी 100K. और ये जितने भी बटन हैं सारे के सारे आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं, और आपको पता है कि सीरीज़ में रेजिस्टेंस डायरेक्टली एड अप हो जाती है. इफ़ ऑल बटन्स आर एट पोजीशन 3, all means all 6 buttons. If button R/1 is at position 3, multiply 3 by 1, you will get the resistance 3 ohm from that button. If R/10 is at position 3, you will get 30. If R/100 is position 3, you will get 300 ohm. If R/1K is at position 3, you will get 3K. If R/10K is at position 3, you will get 30K. And if R/100K is at position 3, you will get 300K. And all buttons are in series, so you will get the combined resistance 3, 6 times 30 ohm.